Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, read the following statements and identify the incorrect statement. Statement 1, small intestine is distinguished into three regions, a U-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a shortest uncoiled ileum. 2 is esophagus opens into cardiac part of stomach. 3 is arrangement of teeth in our half of upper and lower jaws represented by dental formula. 4 is rectum is a small sac which hosts some symbiotic or microorganisms. Option A is 1 and 4, B is 2 and 3, C is 2 and 4, and D is 1 and 3. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the human digestive system. So human के अंदर digestive system is start with the mouth and end at the anus, and it is the system which is responsible for the digestion of the biomolecules. जो भी हम food consume करते हैं उसको digestion में help करता है. And यहाँ पे हमें regarding that digestive system we are given with some statements and we have to identify the incorrect statements. So सबसे पहली statement के बारे में बात करेंगे. It is about the small intestine. So small intestine is the part wherein complete digestion of biomolecules takes place. यहाँ पे क्या होता है, complete digestion, जो भी carbohydrate, lipids, fats, proteins होते हैं उनका complete digestion of biomolecules. And what else, ये क्या है, main site of absorption of food. यहाँ पे क्या होता है, absorption होता है. And small intestine almost 6.25 meter long tube होती है. And basically it is distinguishable into three parts. इसके तीन part होते हैं. Number 1 is duodenum. Duodenum जो पहला part होता है, it is a U-shaped structure and it is about 25 centimeter long. दूसरा part है is the middle part which is jejunum. So it is the long coiled middle portion and it is about 2.5 meter long. And last part होता है इसका ileum. So ileum is highly coiled and most coiled part होता है ये highly coiled and around 3.5 meter long. And ये कौन सा होता है, longest part भी होता है small intestine का. So पहली statement given है, small intestine is distinguishable into three regions. U-shaped duodenum होता है, long coiled middle portion and a shortest uncoiled ileum. So ileum जो है हाईली कॉइल्ड होता है और शॉर्टेस्ट नहीं होता, लॉन्गेस्ट होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. दूसरी में बात की गई है ईसोफेगस की. सो ईसोफेगस क्या करती है, इट कनेक्ट दी माउथ, और अगर मोर प्रिसाइजली हम बोलें तो किसको, फायरिंग्स को किससे कनेक्ट करती है, टू कार्डिक पार्ट ऑफ द स्टमक. कार्डिक पार्ट में ओपन होती है ये पार्ट ऑफ द स्टमक. स्टमक के अंदर दिस अपर पार्ट इज द फंडस पार्ट, दिस पार्ट इज कार्डियक पार्ट एंड दिस इज द मेन बॉडी. एंड इससे नीचे वाला रीजन होता है, दिस इज द पाइलोरिक रीजन. पाइलोरिक रीजन ये किसकी स्ट्रक्चर है, स्टमक की. एंड यहाँ जो ये वाला पाइप है, दिस इज योर ईसोफेगस. ईसोफेगस, सो ईसोफेगस कहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे. दिस इज द कार्डिक रीजन. सो दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी राइट है. तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. इट इज अबाउट द डेंटिशन. सो डेंटिशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा माउथ है उसका अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अगर हम इसको कार्टेशियन में डिवाइड करते हैं, सो दिस इज वन, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज third quadrant and this is fourth quadrant. So upper half of one jaw and lower jaw, they are represented as the dental formula. And एक adult का जो dental formula होता है वो क्या होता है, it is 2 1 2 3, means 2 1 2 3, wherein 2 are incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. So इसको represent करेंगे हम 2 1 2 3 and same way 2 1 2 3, 2 1 2 3 2
1 2 3। तो इस तरीके से दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी राइट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में। इट इज गिवन अबाउट रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, विच इंक्लूड्स योर सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सो फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है कि रेक्टम होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो नहीं, रेक्टम के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। वो किसके अंदर होते हैं? स्मॉल सैक जो होता है, दैट इज सीकम। सीकम के अंदर जो है इट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो आउट ऑफ द 4 पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरी सही है, तीसरी सही है एंड फोर्थ भी जो है रॉन्ग है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई? इनकरेक्ट हुई 1 एंड 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।